ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਵੇਲੀ ਕਲਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 1941 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਸੂੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ FA ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਤੌਰ DSP ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 1999 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ KP ਸਿੰਗਲਾ, ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
महाराज कृपा करे ਆਪਾਂ सारे ने रल के अरदास करनी है। सब जीवो कसमाना कर प्यारे बुरे भले कम थारे ये काल पुरखा ने पैदा किए हैं लेखे जोखे दे कोई बंदा छुड़ नहीं सकता। आप जी ने कृपा करनी अपने जन्नत की निवास रखना पिछले परिवार में पाना मंदा मन करना। सो उदास की भी है कि कीर्तन के विचाले सानी साहब जी ने टाइम दे दिता क्योंकि पंथ का बहुत नामवर जथा जिन्होंने कि बहुत मेहनत करके इतनी मेहनत की कि 0.2 रुपये केसगढ़ साहब हरमंदर साहब तक जो उन्होंने कीर्तन का 10 बार प्राप्त होया है। हम मौजूदा समय के तख्त श्री केसगढ़ साहब के भाई सुभाष सिंह जी उत्थे दे हजूरी जथे हैं। सो बड़ा सुभाग की गल है एक तख्त का जथा अज अंत अरदास के कीर्तन करने लिए बाजवा साहब सरदार जी ने बुलाया है। तो वजिया योग चोन की है उन्होंने। सो उन्होंने कीर्तन करना उन्होंने विचारे बहुता बोलना भी चंगा नहीं है। इस करके महाराज कृपा करे परिवार में भाना मन का मन बख्श करे तो साड़ी सारे की अरदासा परिवार की तरक्की करे जो परिवार के खिलाफ रहा है महाराज से पूरा करे। सो अंत में सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दास ने परिवार को माफ़ी मंगनी है क्योंकि साढ़े सेवादार उन्होंने दस पुत्र 19 साल का रामगढ़ पिंडा परठाली और मियाँपुर के विचाले सो चढ़ाई करके वो भी 1 बजे अरदास है। इस करके 10 मिनट तक दास में चले जाना परिवार को माफ़ी मंगता संगत माफ़ी मंगता। तो जी का नहीं करता कि अरदास के बाद जाइए पर बड़ी मजबूरी है। तो थोड़ा सारे का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। गुरु ग्रुप साध संगत कई लोग समय के बड़े पाबंद होंगे हैं। हरेक थां ते दुख ते सुख ते पहुँचते हैं तो जो दरिया दिली जो सेवा संत बाबा अवतार सिंह जी ने संत बाबा खुशहाल सिंह जी के नाल जो संत बाबा शादी सिंह जी ने चलाई है इतना बड़ा खूबसूरत हाल लंगर मैं अगे भी कहता होना हरेक स्टेज पर कि अमूमन जोड़े साढ़े संत महाराज हैं वो 5वीं 8वीं या 10वीं तक ये सानू माण है। इस एरिए में माण है कि साढ़े संत बाबा अवतार सिंह जी गौरमेंट कॉलेज रोपड़ तो स्टडी करके और वो भी एग्रीकल्चर स्टडी करके अज साढ़े शहर का नाम उपर कर रहे हैं। जो PTC चैनल पर कदे न्यूज़ सुनते होंगे देखते हैं कि आ देखो जी हरेक वार्ड के करोना के लंगर कितों है जी संत बाबा अवतार सिंह जी वालों। अज सिंधु बार्डर पर चल रहा है प्रोग्राम लंगर चल रहे हैं। सेवा कौन कर रहा है जी ये संत बाबा अवतार सिंह जी रोपड़ वाले कर रहे हैं। सो इन्होंने जो सेवा हैगी है तो मेरे वर्गा ने पाना इन्होंने अगे कुछ भी नहीं। तो जे मैं इन्होंने समा ना देवां तो मैं कहांगा मैं कोताही की। सो इन्हों की हाजरी वो शाह महेंद्र सिंह बाजवा जिन्हों के बारे बड़ा कुछ कहांगा मगर बाद हुण जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना मांगना मांगने नीका हर जस गुर ते मांगना। जो संत बाबा अवतार सिंह जी ने रछपाल सिंह जी बारे बोलिया ये कोई दो राय नहीं। अमूमन कंप्यूटर रख के या कैलकुलेटर रख के या मोबाइल रख के शब्द पढ़िया जाता है। मैं गुरुद्वारा साहब कलगीधर के साहब बड़ी बारी है जिथे भी इन्होंने भेजा है इन्होंने कीर्तन की संगतां नूं बंद लेंदे हैं। सो मैं इन्हों के ज़्यादा समा ना खड़दा होया सार रछपाल सिंह जी को बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहब जो समुंदर के विचों अज के इस माहौल के विचों जो शब्द हैं शब्दां राही भेंट करन सार रछपाल सिंह जी केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब। आज गए घरवा आज गए घरवा
गए घर द्वार, आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार। वाहिगुरु आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार, आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार। सिद्ध साधक गिरहि जोगी, सिद्ध साधक गिरहि जोगी, आज गए घर द्वार, आज गए घर द्वार, आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार, आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार। मृत्यु मंडल जग साजिया, जो बाग करवार। मृत्यु मंडल जग साजिया, जो करवार। बिन सतवार ना गई, जो ताकत ढूंढार। बिन सतवार ना गई, ताकत ढूंढार। सुन मेरे मन सब मन है मारे, सुन मेरे मन सब मन है मारे। साथ दे को विचार, साथ दे को विचार। आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार, आज गए घर द्वार जोगी, आज गए घर द्वार। जैसा सुना रंग का, तैसा संसार। जैसा सुना रंग का, जैसा सपना देखा, तैसा कैसा संसार, कैसा संसार। जैसा सपना देखा, तैसा संसार। जैसा सपना देखा, तैसा संसार। जगत जना सब झूठ
सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी महाराज सतगुरु मैं पाया सतगुरु पाया जय मन दिया बाधाया राम दरबार पर शब्द का प्रिया सबो सब हरि के नाम जी बसाया जय नाम जप हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे अनुसार बना Yeah.
पातशाह जीओ आपनियां के चरणा कमला पास अरदास बेनती उदरी है पातशाह जीओ आपनियां का फरमान है कि देहा जी लिखिया देहा हुक्म कुनाहे घले आवे नानका सत्य की जाए दे महाभारत अनुसार पातशाह जीओ आपनियां दे दरकार दे विद्वान कारजोग सरदार मਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ बाजवा नाड़क वाहिगुरु पातशाह जी आपनियां को नाम जितने स्वास बख्शिश कीते सन स्वासा की पूंजी को संपूर्ण करते हुए जपती यात्रा को पूरी करते हुए कई दोस्तों का कराना करके सन पिछो परिवार ने पातशाह जी आपने की हजूर कई दोस्तों अपने गृह विखे अपने की तुर्की माणी के सहज पाठ प्रारंभ करवाए सन जिन्हां दे अमृत वेले अपने की हजूर गृह विखे भोग पाए उपरंत ऐस पातशाह जी आपने के दरबारा विखे दीवार सजाई गई सदैव दीवाना ने प्राप्तियां की बैराग ने कुर्बानी की हर जस कीर्तन हुए से पौड़ी सर जी की अरदास है जी अखरवाद काल को जुम्मा करना की लगा तो सुन कुर्बानी करनी कीर्तन करनी सेवा करनी भागवत नाम समर्थ बख्श करनी जी गुरबाणी का पाप विष्णु ने देव के सोना पातशाह जी विष्णु अपने चरणा कमला पास निवास बख्शिश करना आवागण दे चित्रा को मुक्त करना पिछू परिवार ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਾਲ ਰੁੱਧ ਸਪਰਤਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਦਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਸਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਐਸ ਵਕਤ ਸਮੂਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਸਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਐਸ ਕਾਪੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ थोड़े सुंदर वार से भेंट कीते पातशाह जी अपने गंदी कर की सेवका में लोग बैठ के लोग पढ़ते करने पातशाह जी अपने के हजूर पंचम कड़ा प्रसादी देख सजा करके हाजिर है जी प्रवान को भोगला हो गया तो संता में भुगतान दिया गया बख्शो जी सबो दराया संता करो करो मिठी सी सुरक्षो से प्यारे ले लो जिना में आपका लाभ देता वे नाम नाम चढ़ती कला तेरे माड़े सरता वाहिगुरु जी का खालसा तिलंग महला नवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत ले निसजन प्राणी छिन छिन औद विहात है फूटा घट जो पानी चेतना है तो चेत ले निसजन प्राणी छिन छिन औद विहात है फूटा घट जो पानी रहा हर गुण कहे न गाए मूर्ख अज्ञाना झूठा लालच लाग के न मरण पछाना अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे को नानक ते भजन ते निरभै पद पावै अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावै को नानक ते भजन ते निरभै पद पावै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु शोक में समझ उपस्थित गुरु रूप साध संगत जी आओ फतेह दी सांझ करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह क्या जाना किब मरेंगे कैसा मरना हुए जेकर साहे मन न विसरे ना सहजा मरना आज विशाल कट इस गल का प्रतीक है
स्वर्गीय साहब महेंद्र सिंह जी बाजवा जो कि पंजाब पुलिस दे विच बतौर रिटायर्ड हेड क्लर्क रिटायर होए सन। कई बार सोचते हैं भी गल कित्थों करी, मैं नाम लिख के हैरान हो गया कि शहर की कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ पर्सनैलिटी नहीं रही ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਸਾਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। राम न कबहू चेत्यो हुण कह न मिले खुदा, बाबर बाणी फिर की कोयल ना रोटी खाए। जदों बाबर ने हमला किया उन्हें ना हिंदू देखा ना धर्म देखा ना बच्चा देखा, खून दियां नदियां बहियां ते मेरे गुरु नानक नूं कहना पिया एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आए। समय के हिसाब के नाल असीं हुण इन्हां दिनां दे विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे। सवेरे 3 बजे इशनान पानी करके नितनेम करके सुखमनी करके गुरुद्वारा साहब पहुँच के जिहड़े परिवार के सद्दे पत्तर ते हुंदे उत्थे शब्द गायन करते जाते हैं ते उन्हां रूहां नूं भी नमस्कार करते हैं। दो बड़ियां कीमती जिंदा नीहां विच आण खलो गईयां, ये देख के तसीहा गम दा कंधां भी पागल हो। एक सी अजीत एक सी जुझार कलगीधर दे लाड प्यार, दो पुत्रां दियां जंजां चढ़ियां पंज पंज जांजी घोड़ सवार। एक कविता उन्हां संत राम सिंह जी की लिखी हुई है घोड़ी, जिन्हां ने किसान मोर्चे दे विच अपना शरीर उन्हां को नहीं बर्दाश्त होया ते उन्हां ने गोली मार के इस फानी दुनिया तो अलविदा किया। अज असीं सरदार महेंद्र सिंह बाजवा जी सुपुत्र लीड सरदार संत सिंह जी बाजवा साहब, हरभजन कौर जी उन्होंने धर्म पत्नी ते महेंद्र कौर बाजवा जी लेट जिन्हों का हैड दरबार भोग पिया सी, उदों भी दास नूं सेवा का मौका मिलिया सी। सन सरदार सतबीर सिंह जी बाजवा जो कि इंग्लैंड में हैं, इंग्लैंड में इस टाइम कोई जहाज नहीं आ रहा, उन्होंने प्रॉब्लम और नहीं आ सके। उन्होंने धर्म पत्नी कुलदीप कौर एक गुलदस्ता है परिवार का, मनवीर सिंह जी बाजवा, मनजिंदर कौर जी, ग्रैंडसन रवजोत सिंह जी, शिवजोत सिंह जी ते बिटिया सुरप्रीत कौर कनेडा है ते मनप्रीत कौर वो भी बाहर इंग्लैंड के विच है। ये परिवार का एक गुलदस्ता है। इस तो पहला कि मैं अगली गल करा, कलगीधर कन्या पाठशाला ते थाना सिटी रोपड़ का एक लिंक है। जदों भी 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उदों ही सिटी थाने तो मैंने फोन आ जाता, सानी साहब सानी हाल चाहिए, सैमीनार हाल चाहिए है। सो कहने का भाव कि बाजवा साहब ने भी सानू फोन करना, सानी साहब नियर अबाउट 150 बंदा आ रहा है तो कभी जोड़े हड़ आते हैं उन्होंने टीम आ जाती है, कभी BSF आ जाती है, हरेक बंदा आ जाता है। सो मैं उन्होंने बारे की करा, बाजवा साहब और मैं कई बार स्टेजा पर इकट्ठे रहे और समाज सेवी सन और उन्होंने हरेक थान से समाज के विच सेवा की और उन्होंने जो एक्सीडेंट होया बड़ा दुख होया, असी भी घर देखने गए, मेरे नाल इंद्रपाल भी सी ते थोड़े दिन पहला डेथ तो सिर्फ एक हफ्ता पहला झूठ नहीं मारांगा गोद च खड़ा, मैं इन्होंने फोन किया बाजवा साहब की हाल है कितने हो, कहते पटियाले। मैं कहा पिताजी का की हाल, कहते उस तरह ही हाँ जिस तरह पहले सन। मैं कहा जी तुसी कदों आते हो, कहते शनि ऐतवार। मैं कहा जी मैं घर देखण आवांगा, मगर वो हफ्ता की बीतिया तो वो इस फानी संसार को अलविदा कह गए। कहने को बहुत कुछ है मगर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी ने जाना है, KP राणा जी स्पीकर पंजाब विधान सभा वो भी हाजिरी ला के गए हैं, उन्होंने भी जाना है।
मगर बोलण नूं बड़ा कुछ चाहिए है। मैं सिर्फ ते सिर्फ ज़्यादा समा ना लेंदा होया उत्ते मैं बुलारे जिन्होंने बैठे हैं बुलारा को कोई इन्ना टेंशन पाना भी सानी खड़ा होगा जो 5-10 बंदियां नूं बुला दे। सिर्फ तो सिर्फ धन्यवाद करना है साडे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी ने। मैं सिर्फ एक गल कहनी है क्योंकि जो खुशी का फंक्शन होंदा कोई नहीं सुनता। खुशी के फंक्शन से सब का ध्यान होंदा है गल्लां बातां कर लईए कुछ इधर कर लईए। ते दास की हमेशा है कि सुख सभा के गुरबाणी का विचार होंदा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तार। साडा एक गुरु है असी जो कुछ भी मंगया जिहदे कोल मंगदे हां खुशी होवे कमी होवे सब जिहदे कोल प्राप्त करते हैं। कई लोग कहते हैं यार ये तो सिखां दा ग्रंथ है साडा थोड़ा असी इहदे चों की लैणा है। मैं बड़ा दुख होंदा ते फिर मैं विस्तार च दसदा कि मैं तो हुणे कबीर नूं मत्था टेकिया, मैं तो हुणे नामदेव नूं मत्था टेकिया, मैं रविदास नूं मत्था टेकिया जिहड़ा कहंदा रखो कन उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीमा। मैं तो हुणे तरलोचन जी नूं मत्था टेकिया, उस भगत धन्ने जट नूं मत्था टेकिया जिहने पत्थर जो रब नूं लभ्या। मैं भगत सैन नूं मत्था टेकिया, पीपा जी नूं टेकिया, सूरदास प्रीता जे तैं मारन मुक्कियां तिन्हां ना मारे घुम आप नेड़े कर जाए के पैर तिन्हां दे चो। हुण तुसीं दसो भी कित्थे इन्नियां पीर पैगंबरां नूं असीं मत्था टेक रहे ते फिर साडा थोड़ा अपने भाई साहब ने अरदास की ते की कहा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। उत्थे किधरे नहीं कहा जिन्हें दस्तार बंदी होवे उहदा ही भला होए। जेड़ा भी इत्थे सिर झुकाया है जेड़ा भी गुरु नूं मंनदा है मेरे गुरु नानक ने कहा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। अगली लाइन बड़े बड़े वड्डे रुमाले चढ़ाने 11,000 का रुमाला मेरे वालों 21,000 का रुमाला मेरे वालों। तो मैं जिदा मां कहती पुत 5,000 का सूट भेजता ही 10,000 का सूट भेजता ही एक्टिवा भी लैती आ कभी कभी गलती नाल झोली च धा के बैठ मैं तेरा मत्था तो चुमा तेनों प्यार तो करा। इस तरह ही मेरे गुरु नानक जी कहते चढ़ा तो देंदे हो आओ रुमाला सब चक के ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक चिनकल रखी। अपने भाई साहब मेरे वीर रछपाल सिंह जी केसगढ़ साहब हजूरी रागी जथा शब्द पढ़ गए सज्जन मेरे रंगले 21 अंक ते शब्द आंदा है खब्बे पासे जे आपां जे गोद विच बैठीए तां पता चले 26 अंक ते आंदा विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन जाए। ये शब्द की गल है विद्या विचारी तां पर पुकारी 357 अंक के खब्बे पासे शब्द आंदा ते 480 अंक ते हुणे पढ़ के गए कहाँ गए थे बाबा बोलते थे। सो मेरे विच बहुत ही पर्सनैलिटियां बैठिया हैं। संत बाबा अवतार सिंह जी उन्होंने किसी साथी के बच्चे का 19 साल के जवान मुंडे की डेथ हो गई है उन्होंने उत्थे जाना सी वो अपनी हाज़री लगा के बोल के गए हैं। सोहन लाल जी जो कि DSP रिटायर्ड और एसोसीएशन के प्रधान भी हैं तो हम वकालत भी कर रहे हैं। राजकुमार जी राणा जी रिटायर्ड DSP हरमिंदर सिंह जी DSP महेंद्र कौर जी DSP हरचंद सिंह जी जैवदार प्रनिंदर कौर प्रिंसीपल जी साह दलीप सिंह जी साह नछत्तर सिंह जी एडवोकेट कई गोल्डी जैन जी एडवोकेट सोहन सिंह जी जो कि गुआढ़ी हैं इन्हों के अशोक सेहत पंजाब पुलिस पेंशन एसोसीएशन वालों अशोक मते भी आए हैं 3-4 एडवोकेट हरमोहन पाल जी उन्होंने बेटा दोनों भाई सन हाली लगा के गए हैं। साथ त्रिलोचन सिंह जी सीनियर सिटीजन तो बैठे हैं। पंजाबी स्टार बैठे हैं सुंदर सिंह जी माहल सुंदर सिंह जी बैंस रिटायर्ड SP साहब बैठे हैं। साढ़े हरविंदर सिंह MC साहब बैठे हैं। AR गोयल जी जो चीमा साहब के दफ्तर इंचार्ज सन इलेक्शन के भी बैठे हैं। परमिंदर शर्मा जी बैठे हैं। हरपाक सिंह जी बैठे हैं। राम सिंह जी बैठे हैं। परमिंदर सिंह जी श्री वर्मा जी BJP वर्मा ज्वेलर्स को पंच सरपंच नंबरदार और सारी राजनीतिक पार्टियां के जितने भी आगू हैं समाजिक जथेबंदियां वो भी इतने बैठिया। हरजीत सिंह जी डांगी जो इसे हवेली तो बिलोंग करते हैं। रियल परिवार साथ सेवा सिंह जी का वो परिवार बैठा है। गुरबचन सिंह जी फूड सप्लाई तो बैठे हैं। कई अमरजीत सिंह जी जौली बैठे हैं। साथ सुखविंदर सिंह जी चेयरमैन विस्की साहब शीला नारायण जी एक्सएमसी DCM तो गुप्ता जी बैठे हैं। ह्यूमन राइट्स तो जग्गी जी बैठे हैं। पाल ज्वेलर जी बैठे हैं। रोमा जी पहलवान सुरबीर जी रेलवे के सेवावां निभा रहे हैं। राजवीर सिंह जी राय एडवोकेट बैठे हैं। चरणजीत सिंह जी चन्नी बैठे हैं। राजू सैनी जी 22 नंबर वाले बैठे हैं। SHO रिटायर्ड मजीठिया साहब भी बैठे हैं।
बाबा ब्लड बैंक कवलजीत सिंह जी बैठे हैं, देश राज जी इंद्रपाल इंस्पैक्टर साहब बैठे हैं, एडवोकेट JS ढेर साहब बैठे हैं, सरदार भाग सिंह जी XMLA साहब बैठे हैं, चरण सिंह जी पाटिया, सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, भल्ला साहब बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर जोरावर सिंह जी बैठे हैं, रिटायर्ड PRO सैनी साहब बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर घुमन साहब बैठे हैं, वकील RN मौडगिल, मनदीप मौडगिल, ऑल प्रेस मीडिया जितने भी मेरे वीर बहादुर जी के नाल सारे आए हैं, दया सिंह जी इंस्पैक्टर साहब बैठे हैं, संजय वर्मा जी बैठे हैं, गांधी जी सुरजी प्रेस तो कोरे साहब बैठे हैं, BSNL तो एक्शन साहब बैठे हैं, सरदार बघेल सिंह जी ऑनरीज बैठे हैं, जय किसान जय जवान को प्रधान हैप्पी दुग्गल जी बैठे हैं, सुरेंद्र कौर जी जो गैस एजेंसी वाले बैठे हैं, DSP अवतार सिंह जी बैठे हैं, परमिंदर सिंह जी फैमिली तो बैठे हैं, जसविंदर सिंह जी बाला, BS गिल एंड ब्रदर संतोष कापी, राजेश्वर वाली जी बैठे हैं, शैली MC जी बैठे हैं, सत्येंद्र सैनी शालू जी बैठे हैं, अंबर साहब MC KP राणा जी जो हाजिरी लगा के गए हैं, कौमी सामने जी हाजिरी लगा गए हैं, परमजीत मक्कड़ जी जो नगर कौंसल के जब तक नवर नहीं होंगी तो प्रधान किया जाता है वो बैठे हैं, वेद प्रकाश जी बैठे हैं, गिन्नी जौली जी बैठे हैं, सोढ़ी साहब बैठे हैं, रिंकू MC जी, गोल्डी पाटिया जी बैठे हैं, सरदार अमरजीत सिंह जी प्रधान साहब, सरदार सिंह सभा गुरुद्वारा, मेहरचंद शर्मा, जसपाल सिंह जी सेठी, सतिंदर चौधरी, ये जिहड़ा कि बाजवा साहब ने क्लब बनाया सी जो कि हेल्थ क्लब हैड ते सवेरे 70 के करीब मैंबर पहले प्रधान वो सन ते हुण उस बीच जसपाल सिंह सेठी है सेवा निभा रहे हैं, रविंदर बिंडा जी बैठे हैं, अन्नी तिगरा जी ब्लॉक वार्ड प्रधान बैठे हैं, राजेश जी कांग्रेस आई तो बैठे हैं, बहादुर जीत सिंह जी प्रधान, साबका PRO हरीश कालड़ा जी बैठे हैं, हरजीत कौर MC साहब बैठे हैं, आर समाज को शक्ति ड्राइवर बैठे हैं, जगमिंदर सिंह जी मैंबर PPC हल्का समाना तो बैठे हैं। मैं दसा अजे भी कई मैं नाम भुल गया होवांगा, मैं माफ़ी चाहना हाँ समय की नज़ाकत को देखते ते हुण मैं बेनती करन जा रहा हाँ। डॉक्टर सत्ती जी बैठे हैं, संतोख सिंह जी वालिया बैठे हैं, कई बार की होंगे बंदा लिखता होंगे वीडियो पे मत्था टेक लेंदा, मैं फिर भी हाथ जोड़ के एक स्टेज दे गुरु ग्रंथ साहब के सामने और संगत भी सीनियर सिटीजन के इंजीनियर साहब बैठे हैं त्रोचन सिंह जी, जो गुरु नूं रतबा दिता है संगत में, एक पासे संगत एक पासे गुरु के उसके दरम्यान के विच बोलना बहुत औखा होंदा है। और जो बाजवा साहब ने सिटी के विच रहिंदिया होया जो अपना नाम कमाया है उस नाम के प्रति अज हरेक बंदा अपना कीमती कोई घनौरी तो आवे चाहे कितों आवे, मेरा वीर छोटा वीर PTC जग्गी वो पिछे बैठे हैं, हरेक बंदा इत्थे आया है अपना नाम क्यों कि बाजवा साहब ने कभी किसी नाल कोई यह जी पुठी सीधी गल नहीं की, चाहे SHO सिटी निभाई चाहे DSP रहे हैं, हुण पटियाले सेवा निभा रहे हैं। तो मैं तो यही अरदास करांगा कि हरेक माँ बाप की दिली तमन्ना होती है कि बच्चे अच्छे वेल सैटल हों। साहब महेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी एजुकेशन तलीम दे के इन्होंने इस मुकाम पर उठाया, एक इंग्लैंड में बैठे हैं तो ये अपना पिता जी का नाम इतने रोशन कर रहे हैं। मैं क्षमा का माफ़ी मंगता हाँ कोई भुल चुक हो गई हो तो हूँ मैं बेनती करन जा रहा साढ़े मानयोग साबका सिक्ख्या मंत्री पंजाब डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा सारे रुझेवे विचों कट के जिस दिन शमशान पर जाना सी असी उत्थे भी ये शमशान घाट पहुंचे सन। सो ये प्यार होंदा है हरेक थान से पहुंचना। मैं बेनती करांगा डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा साबक सिक्ख्या मंत्री सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी अकाली दल पार्टी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोदा की मांगली गुरु साध संगत रसना पवित्र करो फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का प्रमाण है घर घर एवं पहुंचा सदड़े ने पकवान सदन हारा सुनिया नानक से दे अवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग सरदार महेंद्र सिंह जी बाजवा साहब ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। बहुत ही दुखदाई समय और बहुत ही अकैत असह विछोड़ा। सारे जिन्ने सज्जन इतने बैठे हैं सारे ही तकरीबन बाजवा साहब के नाल कोई नौकरी दौरान कोई नौकरी तो बाद
ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੋ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲੋਂ ਲੇਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਤਹਿਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਰ ਚਲੇ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ ਉਮਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੋਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਐਕਸ MLA ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਪੀਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਟਵਾਲ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਜੀਤ ਤਸੀਮ ਭਵਨ, ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਹਾਲ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ